Hello students, today we are going to learn lesson number 6, Early Kingdoms part 3. In previous period we have learnt about Janpadas, okay, then Ashwamedha Yajna and Mahajanpadas. So there were two kinds of Mahajanpadas, monarchical and republican, okay, and after that we learnt about Magadha, okay, and today we are going to learn about Nanda dynasty, okay, from 364 BC to 321 BC. We do not know much about the Nanda dynasty except that the last ruler Dhanananda was a cruel king. He was very unpopular with his subjects. Chandragupta Maurya took advantage of his unpopularity and occupied the throne of Magadha in 321 BC. ओके स्टूडेंट्स, हमें नंदा डायनेस्टी के बारे में पता नहीं है एक्सेप्ट जो इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंदा, वो कैसा था, क्रूएल किंग था। वो बहुत ही अनपॉपुलर था अपने किंगडम में। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इस उसकी अनपॉपुलरिटी का एडवांटेज लिया और उसके जो मगधा जो है, जहाँ का वो राजा था, वहाँ के सिंहासन को ऑक्युपाइड किया। कब? इन 321 में। देन वी विल लर्न अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट. Alexander, the greatest conqueror of the world, attacked northwest India in 327 BC. Alexander marched from Macedonia in Greece to northwest India. He conquered all the countries that came on his way. His campaign lasted for 2 years. The famous battle was fought with Porus, whose kingdom lay between the Jhelum and the Jina. He was unable to continue his march as his soldiers were probably tired after fighting for 10 years. Okay, students, अलेक्जेंडर द ग्रेट ये ग्रेटेस्ट कॉन्करर रहा है दुनिया का, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, और इन्होंने अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पर इन 327 BC में। अलेक्जेंडर ने मार्च किया था मैकेडोनिया से, कहाँ, ग्रीस से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, और इन्होंने जीता, बहुत सारी कंट्रीज को कॉन्करर भी किया, और जितने भी उनके रास्ते में जितनी भी कंट्रीज आई उसको वो जीतते गए। उनका ये जो अभियान है जीतने का, ये 2 साल तक चला, और इनका अलेक्जेंडर का जो फेमस बैटल था वो था पोरस के साथ में, जिसका किंगडम था झेलम और चिनाब के बीच में। और ये जो पोरस जो था, ही वॉज अनेबल टू अलेक्जेंडर का जो जो कैंपेन जो था वहाँ पर अनेबल हुआ, कंटिन्यू उसका मार्च कंटिन्यू रखने में वो असफल रहे, एज हिज सोल्जर्स वर प्रोबेबली टायर्ड, क्योंकि उनके जो सैनिक जो थे वो कैसे हो गए थे, टायर्ड हो गए थे फॉर 10 years after fighting for 10 years. Okay, understand? Then we will learn about taxation. Taxes on crops were the most important. The tax was fixed at 1/6 of the produce. This was called bhaga or a share. Taxes were also levied on goods that were bought and sold through trade. Hunters and gatherers had also to provide the produce of the forest to the king. Herders were also accepted to pay taxes in the form of animal produce. Taxes were paid by craftspersons as well. They could be in the form of labor. For example, weavers may have had to work for a day every month for the king. ओके, सो टैक्सेस जो है वो क्रॉप्स पर था, और वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स था, और टैक्स कितना लिया जाता था, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ओके, जिसे भागा या शेयर
कहते थे। टैक्स जो है वो गुड्स पर भी था, दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। ओके, हंटर्स और गैदरर जो है उनको हैड आल्सो टू प्रोवाइड द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट टू द किंग। ओके, हर्डर्स जो थे वो एक्सपेक्टेड करते थे टैक्स को इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोड्यूस, जो एनिमल प्रोड्यूस से जो उनको मिलता था वो जो है उससे भी वो टैक्स पे करते थे टू द किंग। ओके, टैक्सेस पेड होता था क्राफ्ट्स पर्सन के द्वारा। वो लोग जो है इस टैक्स को फॉर्म ऑफ लेबर के रूप में पेड करते थे। जैसे कि वीवर्स जो है वो वर्क करते थे एक दिन के लिए, हर मंथ का एक दिन जो होता था वो राजा के लिए होता था। तो वीवर्स जो है क्राफ्ट्स पर्सन जो है वो हर मंथ का एक दिन जो है राजा के लिए काम करते थे। अंडरस्टूड? So since most people were farmers, agriculture was the main source of revenue. Farmers had to give 1/6 of their produce to the king. Others, such as potters, carpenters, and weavers, also paid tax either in cash or in kind, or by offering free service to the king. Taxes were very important as the king depended on them to his empire. For collecting taxes, tax collectors were appointed. Okay, then we learnt about villages and town. Most of the people lived in villages in the 16th century BC. But from 600 BC onwards, growth of towns started taking place. So towns were the centers of ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा कि 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का जो है एक हिस्सा जो है एक राजा को देना पड़ता था। जो क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो हर महीने का एक दिन जो है राजा के लिए काम करते थे। हर्डर्स जो है उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोड्यूस। ओके, तो ये जो तब से मोस्ट पीपल उस समय जो थे बहुत सारे पीपल जो थे फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर करते थे। और एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही मेन सोर्स था उस समय रेवेन्यू का। फार्मर्स जो है उनको 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस जो था उनको पेड करना पड़ता था टैक्स के रूप में। और जो अदर जो तो होते थे पॉटर्स है, कारपेंटर्स और वीवर्स जो है ये पेड के रूप में क्या करते थे इन द कैश और इन काइंड और बाय ऑफरिंग फ्री सर्विस टू द किंग। ओके, टैक्सेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था एज द किंग डिपेंडेंट ऑन देम टू रन हिज एम्पायर। क्योंकि टैक्स उस समय इतना इम्पोर्टेंट होता था कि क्योंकि राजा जो है वो टैक्स पर ही डिपेंडेंट होता था, क्योंकि उसे अपने एम्पायर को रन करना पड़ता था। ओके, तो कलेक्टिंग टैक्सेस के लिए राजा जो है टैक्स कलेक्टर्स को उन्होंने अपॉइंटेड किया था, जिससे जो अलग अलग लोगों से वो टैक्स वसूल करते थे। विलेजेस और टाउन्स के बारे में कहा जाए तो बहुत सारे पीपल जो है वो विलेजेस में रहते थे 6th सेंचुरी बीसी में, और 600 बीसी से ऑनवर्ड्स जो है टाउन्स का ग्रोथ हुआ, शहर बनने लगे, नगर बनने लगे उनकी जगह पे, एंड टाउन्स जो है वो सेंटर होने लगा ट्रेड और कॉमर्स का। ओके, देन वी विल लर्न अबाउट सोसाइटी। Society was divided into 4 distinct groups or varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. The Brahmins performed religious functions and sacrifices. The Kshatriyas were warriors and fought wars. The Vaishyas cultivated and tilled the land, and the Shudras served the 3 upper groups. Apart from these, there was a 5th group, the untouchables. They were required to perform unclean jobs. ओके, तो उस समय जो था सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी में 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप होते थे, वर्नास होते थे,
जिसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। ओके, तो वो 4 ग्रुप्स और वर्णास थे, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ब्राह्मण जो थे वो परफॉर्म करते थे रिलीजियस फंक्शंस को, सेरेमनी को एंड सेक्रीफाइसेस को। क्षत्रियास का काम था, क्षत्रियास जो होते थे वो वॉरियर्स होते थे, वो युद्ध में लड़ाई करते थे। वैश्यास का काम था, कल्टीवेट करते थे वो, और लैंड को टील करते थे, व्यापार करते थे। और शूद्रास जो थे, ये जितने भी 3 अपर ग्रुप्स है, कौन से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करता था। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, ये चारों को छोड़ के एक 5th ग्रुप भी था जिसे अनटचेबल्स कहा जाता था। दे वर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अनक्लीन जॉब्स। और ये जो अनटचेबल्स जो ग्रुप नया जो सोसाइटी में बना था, उस वो क्या कौन सा काम करता था? अनक्लीन जॉब्स करता था। ओके, अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड. Then we will learn more about this lesson in next period. Okay, bye.